I also use it. So I'll talk about myself for first 5 6 minutes, and then we'll move on to your questions. Right? I know that you may be very eager to ask several questions about my journey, your aspirations. How do you achieve your aspirations? So we'll cover that, right? So uh, just to tell you all that I come from a village background, right? It was very difficult for me at the stage to even think about IIT. I did not even know IIT before I came into 11th standard because nobody was at that level in the village. And I started learning about it through a friend who was studying in the city. He introduced me to IIT, and then he told me the level and the sort of premium aura about the institute. So that's how I came to know about it. And I still remember when I recall how it all began. It was very interesting. I shared my thought with one of my friend that I want to do it, and he was laughing. So he said that you can't even ready, you're not even ready for your 12th standard, and you're thinking about IIT. So it's near impossible. So I did not take that seriously at the time, but at the same time, I was not aware the grueling schedule, the toughness of the exam. I had no idea, to be very honest. I was very blank at the time. Anyway, it's a long journey. I'll not cover up everything from that. But then, only thing I want to tell you from my own experience is that if you think that you want to be there, if you believe that you want to be there, you can reach there. Somebody who looks uh, uh, more intelligent, more deserving in your views, he may reach maybe earlier than you, but that doesn't mean that you will not reach there. Goal is not about reaching at the same time. Goal is about reaching there. Time may be longer. So never care about time. Never care about your mental levels, because at times you feel disappointed, you feel depressed, you are not as intelligent as others, right? So that depress you. That feeling comes. We are human, right? So we feel like that कि दूसरा जो स्टूडेंट है वो वही क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेता है, एंड आई स्ट्रगल. He takes half an hour, I take 2 hours. I tell you, in the end, it does not matter whether it was 2 hours or half an hour. What matters is whether you were able to solve it or not. And I guarantee you, everybody in this room, I don't know about your mental levels, but I guarantee that if you're determined, if you are passionate about your dream, you can solve that question. You can be at that level. I'm the example. I give it to so many people around me. And there's so many people in a country, those who are like me, who come from such a humble background, such a poor background, I would say. I did not have books to even think about IIT. But when I came out after 12th exam, I was not through in the IIT immediately after 12th. I was into IIT 2 years after the 12th. 2 years after the 12th. But I reached there. That matters. For 2 years, I was not doing graduation. I was not doing anything else. I was vying for my dream. I was hitting it hard, right? I was spending 16, 18 hours because I had that passion. I want to be there. So that's the story that all of you should take away from this room, that is not impossible. If anybody from this group is vying for IIT or NEET exam, I believe that some people may be preparing for NEET also, right? It is very much possible. I tell you, you don't have to give up. That's the only thing. You don't have to depress. You don't have to feel like अच्छा वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ. उसको तो पहले से आता है, उसको जल्दी समझ में आता है. These are immaterial thoughts. इनका कोई वैल्यू नहीं लाइफ में. मुझे 20 साल हो गया किए हुए, IIT से पास आउट हुए, 20 years, and I have done whatever I wanted to do when I was in the job. Actually, after IIT, I came into corporate world, started with a lot of excitement, achieved a lot of things, many awards in last 15 years. But then after 15 years, I realized that that's not all I want to do.
I want to do something else. Then I went back to my own journey. I went back to stage where I realized that there were so many people, those who were aspiring uh, to be in IIT or elsewhere, but they had similar dreams. They did not have enough resources. They did not have enough support. They did not have friends who can guide them. They did not have teachers who can guide them. It happens even today. If I go to countryside, when I say countryside, villages, you will see that there are people, those who have spark. Their mental level is really good. But in absence of resources, in absence of right educational infrastructure, they end up doing very ordinary jobs. They have a lot of potentials, but then that potential never realized because nobody gave them that platform. And very few number, very small number who basically dare and then break that cycle and then find the way. They come to cities, they reach out to friends, they reach out to someone who is already in the IIT and in their network, friends network. They talk to that person, they take his guidance, and they, one or two, maybe out of 100, they make it to that route, right? But the number is very small. What we're talking about is a big number, large gentry who is capable but then struggling. So I thought, let's do something which can help the gentry. Can I directly or indirectly reach out to these people? Can I be helpful for them? Can I be that ladder, that support system, so that these people take that ladder and then take a baby step and then move on, right? So that's the idea. That's why I'm into education now, right? I thought, what else can be the next field or next domain where I can utilize myself, my experience, my journey, my learnings, and help the newcomers, a lot of children's, and try to find out ways so that I know the pulse, I know the journey, I know the pain, so I know the solutions also. That's what I'm trying to do right now. I'm trying to solve a problem, and that problem is that all of you study entire year, right? You go to school, you take classes, teachers teach you the subject, the chapters, but what is most important towards the exam is how do you test your knowledge, how you test your readiness for the exam. So we are in that business now. We are very early stage, but then we are aiming high, aiming that we become a platform wherein we help almost everybody, and we become affordable for everyone, so that they don't struggle to access the platform. So we are doing that right now. I approach Abhishek sir and I ask him that can we become a partner, and then can we enable our platform at your center so that students start using it, and then they give us the feedback also. So idea is that we give you that platform, we give you that resource, we enable you so that you practice more, and then you practice um, the coverage of your test series, and the assessment should be wide enough so that you feel like you have covered every variety of questions. You feel like there's nothing else which will come in the exam, because you have covered so many variety of questions. So nothing is left beyond that. If anything else comes up, then your mind is trained enough to deal with that new question or new idea. It happens. IIT, if I remember what we used to do, I remember that हम पिछले 8-10 साल के पेपर उठाते थे, उसको करके हमें लगता था कि अब सब कुछ हो गया है. एंड IIT का पेपर यूज टू सरप्राइज अस. दे वर ऑलवेज 4-5 क्वेश्चन. क्या लगता था ये तो टीचर ने भी कभी बात ही नहीं किया है, ऐसे कभी बात ही नहीं किया उसने, ऐसा कभी बताया ही नहीं. Whoever is setting the paper for IITs or NET, they understand the student will be ready. He will have all the questions done from last 5-6 years, and we have to beat him at least on 30% questions out of 100%. 30% question will be, they will be shocker, they will be surprising you, and you have to be ready. The only way to get ready for them is that you practice enough, you cover all the varieties, you attempt a concept from all the angles, not from one angle only. अब अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन में आप ये नहीं कर सकते कि यार फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद किया और फ्रिक्शन के फॉर्मूले के बाद मैंने जो है 4 क्वेश्चन लगाए और मैं रेडी हूँ. नहीं, फ्रिक्शन के फॉर्मूले में जो वैल्यू आती हैं वो आपको कहाँ पे टेस्ट करेगा, वो आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं देगा.
he will ask you to drive the value from that sort of सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है वो, कि आपको बताएगा कि भाई एक कार है या फिर ये व्हीकल है, ये इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द फ्रिक्शन लेवल, इतने किलोमीटर गया, वॉट एवर इट कुड बी अ लैंग्वेज. सो दैट लैंग्वेज टेस्ट यू, and the only way to get past that language is that you understand the concept. Learning the formula is not enough, and I'm not talking about IIT, I'm talking about any competitive exam. If you go beyond your engineering exam, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि हर साल हम लोग when I was working in IT company, तो वहाँ हर साल हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज जाते थे, हम वहाँ से बच्चों को हर साल रिक्रूट करते थे. So I myself was responsible for hiring at least 20 to 30 people from engineering colleges, different engineering colleges. पंजाब, आपका ये, फिर आपका हरियाणा भी हो गया, यूपी था, और आपका बंगाल. तो कुछ कॉलेज थे जहाँ हम जाया करते थे, और वहाँ पे जब हम बच्चों से बात करते थे तो ट्रेंड गया नहीं उनका. जो पहले 12th तक था वही ट्रेंड चल रहा है कि उन्होंने C++ पढ़ा. C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं, और उसको पूरा रट्टा लगाया, राइट. रट्टा लगाने के बाद व्हेन वी यूज्ड टू टॉक टू देम, तो वी नेवर आस्क कि अगर मुझे एक ऑपरेटर यूज़ करना है, एग्जांपल के तौर पे मुझे एक कंडीशन बनानी है कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल, भाई आपका अगर साइंस में आपका 60% मार्क्स है और मैथ में आपका 70% मार्क्स है, तो आपका एग्रीगेट 60 से ऊपर हो गया. अगर मुझे इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है तो आई विल यूज़ अ ऑपरेटर, वी कॉल इट एंड ऑपरेटर, राइट. तो उनको ये मालूम है कि एंड ऑपरेटर बताना है, पर हम उनको ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे. हम उनको ये पूछते थे कि भाई आप ये बताइए कि आपके पास ये 15 वैल्यूज़ हैं, 30% भी है, 50% भी है, 45% भी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्टूडेंट और द नंबर्स विच आर क्रॉसिंग 60%. तो राइट डाउन द लॉजिक फॉर दैट, राइट. तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से अलग है. पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि फिल इन दी ब्लैंक्स बताना है, आंसर बता दिया कि आंसर ये है. इसको कैसे अचीव करेंगे आपको पता है, ऑपरेटर लगाना है, मेरा काम हो जाएगा. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको वाइड ओपन जिसको बोलते हैं ना, थ्रोइंग इन द सी, मैं आपको बोलूँ भाई ये रहा डेटा पॉइंट्स, ये 15 डेटा पॉइंट है, आई नीड द आंसर. तो यू हैव टू कम अप विद द एल्गोरिथम. कैसे सोल्व करोगे, 15 में से आपको 2 निकालना है, तो यू हैव टू राइट द लॉजिक. तो लॉजिक आप तब लिख पाओगे व्हेन यू नो एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट, द थ्योरम, राइट. तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, रटना नहीं है कोई भी. मतलब मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है आप लोगों को, इस ईजियर सेड देन डन के रटना नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए जितना टाइम होता है उसमें रटना पड़ता है कुछ. लेकिन जब भी आपको वक्त मिले, आप कोशिश करो कि जो आपका मोस्ट डिफिकल्ट एरिया है, मान लिया आपको लगता है कि मुझे कैथोड का एक टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 11th-12th में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, टेबल है आपकी एलिमेंट वाली टेबल है. अगर आपको कभी लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आता है यार, मुझे बार बार मैं गलती करता हूँ उसमें, तो फाइंड आउट वेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, स्पेंड टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग इट. जब भी खाली टाइम मिले आपको ना, उस पर लगाओगे, एक बार आप कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे ना, तो फिर वो कभी जाएगा नहीं. कॉन्सेप्ट आर नेवर फॉरगॉटन. जो आप याद करते हो वो तो भूल जाओगे आप. पेपर के बाद ही आपको 2 घंटे बाद मैं पूछूंगा, आपको लगेगा भाई अभी तक तो मैंने संभाल के रखा था यहाँ पे, आप गायब है, पेपर हो गया है मेरा, राइट. तो ये होता है, नेचुरल है, सबके साथ हुआ है, पर मेरे साथ भी हुआ है. ऐसा नहीं, मैं ये बता दूं कि मैं क्लास का कोई मैं टॉपर नहीं था, मैं अपनी क्लास का टॉपर नहीं था. आई वॉज वेरी एवरेज, अभिषेक, वेरी एवरेज. The only thing which made me winner or bring me here is my passion, which is still carrying me. Passion is more important than the level of intelligence. Level of intelligence is secondary. I guarantee it based on my 20 years of experience. Intelligence is secondary. Passion is first. क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को मैंने देखा है अपने करियर में 20 साल में, कि they are not focused. They are always, जैसे होता है ना कि कभी यहाँ से वहाँ, ये आज एक हफ्ता ये आइडिया, अगले हफ्ते आइडिया चेंज हो गया है. आइडिया का मतलब आप ये करना चाह रहे थे, आप फिर वो करना चाह रहे हो. जैसे आप अपने लेवल पे देख सकते हो, आप में से अमंग द बॉयज़ अगर कोई जिम जाने के लिए कभी सोचता है कि मुझे जिम भी जाना है, तो आप जाओगे. उसमें से कोई ऐसा होगा 6 महीने जाएगा, कोई ऐसा होगा 3 दिन के बाद, नहीं भाई आई एम डन, आई हैव टू डू समथिंग एल्स. तो व्हेन यू हैव अ ड्रीम,
you need to become passionate about it and never bother about your level of intelligence. बहुत कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ, सेकेंडरी है. far more worst have reached to that level only because they never gave up. So giving up and not giving up is the core, the fundamental concept here. छोड़ना नहीं है. Make it your passion. मोबाइल छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, खासतौर से यहाँ से लेके एग्जाम तक. Keep it aside. Decide your 2 hours when you want to use it only for accessing the study material, clearing a concept, maybe watching a video on YouTube to clarify your concept, right? Cementing your logics. तो वो आप कर सकते हो, but be disciplined and strict with yourself. 2 months, 2 or 3 months, and then life is easy thereafter. फिर आपके बहुत सारा टाइम है, आप कुछ भी करें कीजिए, उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं है. तो नाउ इज द टाइम टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. हम बोलते हैं नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ड में इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. मतलब लर्न व्हाट यू नीड टू डू व्हेन. आज मुझे ये करना है तो मैं यही करूँगा. अगले 4 घंटे कॉर्पोरेट वर्ड में क्या होता है, व्हाई द लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट. अभिषेक मैं तो जी चुका हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ कि दे मेड यू मल्टी टास्क पर्सन. they want you to change the context every half an hour, maybe an hour. आप 1 घंटे एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट आवर यू आर डूइंग एंटायरली डिफरेंट वर्क जिसका पिछले वाले से कोई लेना देना नहीं है. तो आपके जो माइंड है उसको बहुत ट्रेन करना पड़ता है. तो ओवर द ईयर वी ट्रेन आवरसेल्व्स कि अगर 1 घंटे ये करना है तो 2 घंटे के बाद वो मीटिंग भी अटेंड करनी है. उस मीटिंग का एजेंडा अलग है. आई हैव टू ड्राइव अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर इन दैट मीटिंग एंड आई नीड टू बी रेडी. Always I need to be on my toes at my best. I can't afford to be mediocre in corporate world. Corporate world is more difficult than studying and then doing IIT. मैं बहुत honestly बता रहा हूँ आपको, that is a more difficult job. वहाँ पे जो लोग नहीं कर पाते हैं they don't progress. एक जॉब एक ही लेवल पे आप 10 साल निकल गया आपका ना, फिर कहीं से कोई नया लड़का आएगा या कोई नई लड़की आएगी, दे कम विद लॉट ऑफ पैशन और वो इतनी तेज़ी से रॉकेट की तरह आगे निकल जाते हैं. 10 साल में दे रीच वे अदर पीपल कुड नॉट रीच इन 15-20 years. It happens. I've seen it. Why? Because the same. I mean, they know what is the aim, what is the dream. Anyway, I have taken a lot of time, so I can fill your questions. If you have any question you want to know more, please feel free to ask. कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई, don't worry about the question. It may be the worst question, don't worry about it. Ask it if you have a question. I studied in UPSC, UP board. Yes. Currently it is in Uttarakhand. Earlier it was part of UP. So I come from Haridwar. अच्छा अच्छा, कैसे? Okay, okay, all right, nice. Good. Right. Any other question, guys? और नेवर फील डिमोरलाइज. मतलब इसमें कभी ये कुछ नया नहीं होता है ऐसा. कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्लास में जाने के बाद दूसरे बच्चों को देख के. उसका कोई प्लेस नहीं है हमारी लाइफ में, उससे कोई मतलब नहीं. भाई जो अच्छा कर रहा है वो अपने लिए अच्छा कर रहा है ना, आपके ऊपर तो कोई एहसान नहीं है इस बात का. यू हैव टू वरी अबाउट योर सेल्फ. डू नॉट फील प्रेशर फ्रॉम अदर्स. उनको जो करना है वो जहाँ पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे, उनका डेस्टिनी है. यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी कि ठीक है मेरा गैप है बट दिस गैप इज ओनली टेम्परेरी, मे बी फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल ऑल्सो बी क्लोज टू दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. सो थिंक लाइक दैट एंड हैव क्लैरिटी इन योर विजन. अगर आपको ये बहुत सारे, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और व्हाट आई एम गोइंग टू टेल नाउ इज मे बी completely different thing and surprising for you. My own daughter is in 12th now. I have 2 daughters. The elder one is in 12th. And after 10th, I asked her, what do you want to do? I thought she would say engineering. और उसने बोला कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है. And I was very happy.
क्योंकि मैंने उसको 6 क्लास से लेके 10 तक पढ़ाया है. आई नो दैट शी इज मेड फॉर समथिंग एल्स. शी इज़ वेरी गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. शी पार्टिसिपेट्स इन डिबेट्स, यूजीएन वगैरह आप लोग को मालूम होगा. तो शी इज़ वेरी एक्टिव इन दैट. So I advised her that IIT is not for you, not even NEET is not for you, क्योंकि वो बिल्कुल अलग फील्ड है, वो एक अलग डोमेन है. वहाँ पे इफ़ यू डोंट लाइक स्टडी अ लॉट एंड यू हैव डिफरेंट करियर विजन, देन गो फॉर दैट. डोंट वरी अबाउट इट कि हर कोई IIT या NEET में जाएगा तभी करियर बनेगा, ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस नाउ एंड नो ऑप्शन can be said that this is not good and this is good. ऐसा भी नहीं है. ऐसा नहीं कि IIT give you a great career and the other field will not give it, right? ऐसा नहीं है. So she is not into IIT, she is not into NEET, she is into humanities now and she is happy. Even I'm happy because I know that what she would do actually that aligns to her skills. तो ये हमें करना नहीं है कि भाई मैंने IIT से किया तो बच्चे भी IIT ही करेंगे. नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है. अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही कीजिएगा. आपका इंटरेस्ट नहीं है तो अपने आप को धकेलना नहीं है. अपने आप को वहाँ लेके जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ एंड आई विल डू इट वंडरफुली. और ये जज करने का बड़ा आसान तरीका है. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पता नहीं कि क्या करना है. ये समझ में नहीं आता है कि कोई बताने वाला नहीं कि क्या करें. बहुत सिंपल है. अगर आप अपने आप से पूछोगे तो आपको जवाब आप ही को मिलेगा, पेरेंट्स को नहीं मिलता है, आपको मिलता है वो आंसर. वो ये है कि आप अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा काम है जो करने में आपको अच्छा लगता है. आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. थोड़ा सा लगाते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा आता है. जब आपको ये जवाब मिलना शुरू हो जाए कि मैं ये करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद भी अच्छा लगता है. मान लिया मैं किसी की बात करता हूँ, किसी को पेंटिंग करना पसंद है. आपको लगता है कि बाकी तो यार सुबह शाम तक ब्रश चलाएंगे तो वो पता नहीं क्या बनाएंगे, मैं 15 मिनट में जो बनाता हूँ वो सबसे अलग होता है. then that is the area I think you can choose. I know it's very difficult to convince parents these days, even today in this modern time it's difficult. But then if you believe that you have extraordinary talent in that area, there's nothing wrong in pursuing it. There is nothing wrong. थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना, लेकिन आप बता सकते हो. 12th तक आप go with the stream you're doing, but when you're done with the 12th, after that you start pursuing that dream on the sidelines. I'm not saying that leave everything and then do that. एजुकेशन के एक लिमिट तक अपने मायने हैं. ग्रेजुएशन तक आपको जाना है, ग्रेजुएशन तक आपको कंप्लीट करना ही है. उसके बाद यू चूज दैट यू हैव टू मेक योर करियर, देन व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड. तो लेकिन वहाँ तक तो जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 11th के बाद अरे मुझे समझ में आया कि मैं पेंटर हो सकता हूँ या मुझे समझ में आया कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकता हूँ, राइट? तो मैं क्या इंजीनियरिंग क्यों करूँगा, मैं 5 साल वेस्ट क्यों करना है, 6 साल वेस्ट क्यों करना है. लेट मी स्टार्ट इट नाउ, है ना? तो वैसा नहीं करना है. तो कीप दैट आइडिया, दैट थॉट, दैट टैलेंट इन यू आइडेंटिफाइड एंड देन रेडी टू वेंचर इनटू इट व्हेन द टाइम कम्स, है ना? तो मेरे ख्याल से दैट्स ऑल आई हैव फ्रॉम माय साइड विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. If you have any other question when I can help from my experience, feel free to ask. Sorry? Host? No. My parent did not know what I'll be doing. Rather, my father even did not know that I was 12th passed already. He was asking what will you do in 12th. So it was so disconnected because he was from a farming background, so he was more focused into farming on day-to-day basis. He even did not know what I was doing. So I was taking my own decisions at the time. And to be honest, I did not know many options at the time to choose from. So I came across engineering as one of the options. I knew I was very good at maths. Physics and maths were my preferred subject. I was very good at physics. So I knew that PCM can give me a career. And people told me that engineering is that option. And a friend told me that if you reach to this level, IIT, then you are among the best. So cold. But after coming out from IIT and spending 20 years in the
in the corporate world, I can tell you every IIT is not the best. I'm being very honest with you. People coming from other engineering colleges are also as good as IITians. The differentiator creates when they come into field. Degree helps you to start with. Maybe you start with Google or Microsoft. The other will start with maybe a company which is India based. But the 5 years, first 5 years, they separate the man from boys. It's so clear and so cruel also, I would say. The corporate world tests you day in, day out. And if you have talent, it does not matter which degree you hold. That degree is valuable only for a month once you're in the corporate world. In second month, you are exposed, you're out in the open. If you have talent, you will survive, you will grow. If you don't have the talent, you will left behind. Others will take over. Right? थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं आई डोंट नो आई एम स्केरिंग यू राइट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ मिरर जहाँ से आप देख पाओ कि किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं लेना कि यही अच्छा है यही बुरा है. फोकस व्हाट यू वांट टू डू एंड देन इंस्पायर फॉर दैट, वर्क हार्ड, दैट्स इट. No, he was not in IIT. He did not do IIT. He did not do the engineering. Now he's into his own business. So he knew about it, and he asked me that if you want to do engineering, why not IIT? I said, what is IIT at the time? Because गांव में कोई माहौल होता नहीं है. It's a very very decent, very विलेज लाइक एनवायरनमेंट, जहाँ पे सुबह जाओ, स्कूल से 3 बजे आए, 3 से लेके 5-6 बजे तक खेले, कभी क्रिकेट खेल लिए, कभी कुछ और खेल लिए, 6 बजे घर, उसके बाद दोस्तों के साथ, और 8 बजे अपना उसके बाद मूड हुआ पढ़े, उसके बाद सो गए. नेक्स्ट डे फिर यही प्रक्रिया चलेगी सुबह शाम तक. तो उस तरह का बैकग्राउंड था. तो वहाँ पे किसको क्या पता होगा. हाँ, मैंने वहाँ पे ये जरूर सुना था कि भाई एक होता ना वो ITI एंड डिप्लोमा. These were 2 areas wherein people were very very bullish कि मुझे ये करना है. तो मुझे लगा कि मैं भी यही कर लेता हूँ, लेकिन then I was lucky that somebody said that no, you can't, you can do something else. So that's how it started. But ये मुश्किल था, मैं I'm being very honest, because of resources का बड़ा challenge था. कई बार डेस्टिनी होती है, कई बार आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, हेल्प मिल जाती है. टाइमली हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ज़रूरत है तब आपको किसने बताया. अगर 2 साल 3 साल के बाद बताया तो आई कुड नॉट हैव यूज दैट इन्फॉर्मेशन. So that's the power of information coming at right time, being utilized. It matters, right? तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी सोच रहे हैं कि हमें 12th के बाद किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, ट्राई करना है. सब लोग ट्राई करने वाले हैं या कुछ का प्लान थोड़ा अलग है, ग्रेजुएशन भी करना है उसके बाद सोचेंगे, ऐसा भी हो सकता है. एंड नोबडी इज राइट और रॉन्ग. I'm being very honest. Both are right. I mean, trying competitive exam after 12th is okay. Even going for graduation is also okay. As long as you have a vision, you have an idea what you want to do. Scoring good marks is always a preference. It will make you happy. It will give you confidence. The important thing in the life is confidence. चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, confidence change the life. If you, and at this stage, the best thing you're doing at this stage of your life is you're studying, right? So do good in study, and then it'll add to your confidence. That's why study is very 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 important, because it add to your confidence. Okay, all good. Good. नहीं, आईटी का एनवायरनमेंट ऐसे होता है कि सब लोग उसी लेवल पे होते हैं, सेम लेवल पे होता है. हर कोई सेम लेवल, सेम हार्डवर्क करके वहाँ तक पहुँचा है. तो एनवायरनमेंट इज मोर लाइक स्टडी स्टडी स्टडी. एवरी डे इज़ अ बैटल, क्योंकि इतना आपके पास असाइनमेंट हो जाते हैं
लेकिन मैंने देखा कि पहला साल थोड़ा मुश्किल होता है आईआईटी में। एक बार बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है जो आप लोग, अगर जो भी लोग पहुँचेंगे तो रियलाइज़ करेंगे, आईआईटी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रॉस करना मुश्किल है, आईआईटी करना आसान है। आप 4 साल आपको जो वहाँ पढ़ोगे वो रिलेटिवली ईजी है। तो आपने इतना मेहनत किया होता है कि आपको लगता है ये तो बहुत ईजी है, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा काम मिलता है डेली का, लेकिन इतना नहीं है जो आप उससे पहले कर चुके हो। तो जर्नी टू क्रॉस द एग्जाम इज मच टफर देन डूइंग द आईआईटी कोर्स इटसेल्फ। इट्स ईजी। केक वोक लगता है कई बार कुछ लोगों को, जो कि जिन्होंने बहुत खूब घिसा होता है कि मैं इतना कर चुका हूँ कि ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, राइट? So all the best to all of you for the exam which is coming up in next 2-3 months. I hope that all of you do well, right? And don't lose heart, don't give up, keep aspiring, keep doing small bits every day, and you'll be doing good. परसेंटेज पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि 65 आया, मतलब 65 तो हमारा यूपी बोर्ड का हुआ करता था, अभी तो 95 90 का होती है। यस प्लीज। हाँ, ये बहुत बहुत होता है। ये बहुत होता है कि आप चाहते तो हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। वजह क्या है कि कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा है ना, उसी की, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि भाई पूरी बुक करनी है मुझे यार, एक चैप्टर के पीछे मैं कब तक छोड़ूं, बैठा रहूँगा। तो ऐसा कई बार होता है कि ये तो मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, राइट? तो 2 तरीके से हम लोग करते थे उसको। पहला कि एक अच्छी बात थी कि हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, स्कूल का क्लासमेट्स का ग्रुप था, 3-4 लोगों का, और हम आपस में बात करते कि यार तेरे को ये अच्छा आता है, मैंने देखा है कि यू नो इट बेटर देन अस, तो व्हाट टेक्निक यू हैव यूज्ड। तो कई बार वो आइडिया दे देता था कि जैसे फॉर्मूला याद करने का, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक यूज़ करते हैं ना, साइन थीटा कोस थीटा को लेके बहुत सारी यूज़ करते हैं हम लोग। तो किसी ने कोई ट्रिक बता दिया, वो ट्रिक पकड़ में भी आ गया, हाँ ये ट्रिक तो सही है, इट हेल्प्स, तो वो यूज़ कर लेते थे। और अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो फिर टीचर से बात करते हैं कि भाई इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताओ। अब स्कूल के टीचर शायद नहीं बताते होता, लेकिन जब ट्यूशन में भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं कि ट्यूशन नहीं पढ़ा हूँ, ट्यूशन ट्यूशन का टीचर हेल्प करता है। वो बोलता है कि नहीं, अगर आप एक प्रॉब्लम लेके आए हो तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम इसलिए लाए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ही हेल्प्स यू, ही विल फाइंड अ डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट। और हमारे टाइम में तो यूट्यूब नहीं था, तो आज की डेट में तो एक कॉन्सेप्ट को मैं 15 तरीके से यूट्यूब पे मैं 2 मिनट में निकाल लेता हूँ, 15 तरीके से। हर कोई बंदा आके वहाँ पे, जो प्राइवेट जो यूट्यूबर्स हैं एजुकेशन फील्ड में, इतने वीडियो डाले यार, अब तो ये समझ आता है कि भाई अच्छा इतने तरीके से समझ सकते हैं। आई ऑल्सो गेट सरप्राइज, आई एम टू दिस फील्ड, तो आई ऑल्सो रेफर टू यूट्यूब वीडियो एट टाइम्स व्हेन आई एम इन ट्रबल, व्हेन आई एम सर्चिंग समथिंग एंड आई नीड दैट, तो मैं वहाँ से मिल जाता है। तो मैं देखता हूँ कि इतना तो कभी था ही नहीं, हमारे पास ये सब नहीं था हमारे ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है 12th मैंने किया है 93-94 की बात है, 94। तो उस वक्त तो यूट्यूब कहाँ है यार, उस टाइम तो गूगल भी नहीं था। गूगल मेरे सामने आया है व्हेन आई वाज इन, बेसिकली आई वाज स्टडिंग इंजीनियरिंग। ईमेल, आपको अभी बेसिकली बताऊं कि ईमेल, हमारे पढ़ाई करते करते ईमेल आया है, ये बात है 96 की। तो हमारे जो सीनियर थे आईआईटी में, उनको अपने एडमिशन के लिए यूएस की यूनिवर्सिटी में मेल भेजना था, तो उससे पहले तो सब कुछ पोस्ट से जाया करता था। तो उन्होंने एक बार बोला, मैं मुझे याद है अभी कि किसने बोला कि मुझे ईमेल करना है यूनिवर्सिटी को। आई थॉट व्हाट इज ईमेल भाई, ईमेल क्या होगा, उसमें वो डॉक्यूमेंट भेजने हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि ईमेल जैसा कुछ ही चीज़ है जिससे कि आप डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हो किसी को। तो हॉटमेल जो समीर भाटिया, सबीर भाटिया, समीर भाटिया, सबीर भाटिया ना, सबीर भाटिया हु वाज इंडियन, ही वाज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल, हॉटमेल, यू राइट। तो हॉटमेल पहले आया था, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में खरीद लिया, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल पहला ईमेल है, उसके बाद तो गूगल और पता नहीं कितने लोग आ गए। तो ये सब हमारे सामने आया, यूट्यूब भी हमारे सामने ही आया। हम लोग तब तक पढ़ ही रहे थे, तब यूट्यूब आ गया था। तो ये सब चीज़ें, दीज आर
दीज आर बिग इन्वेंशंस जिसने पूरा चेंज कर दिया, लाइफ पूरी चेंज हो गई हम सबकी। अब सब कुछ फिंगर टिप्स पे होता है, मोबाइल पे यू हैव एवरीथिंग, राइट। तो हम उस टाइम में नहीं था, द बुक्स वर द ओनली सोर्स। तो वी यूज टू हैव आर यूपी बोर्ड बुक, एंड देन वी यूज टू हैव वन और टू राइटर्स थे वहाँ पे उस टाइम, उसको हम उसी से प्रैक्टिस करते थे। चॉइस मिल गई, पहले उसको अच्छा कर जाते थे, अच्छा कर जाते थे। तो यहाँ पे पढ़ना बहुत डायमेंटेड। मैं जैसे वही बता रहा हूँ अभिषेक जी कि हमें मतलब वी हैव टू सेट आर पर्सनल गोल्स। अगर आप ये अभी भी होता है, ये होता है कि आप मान लिया आप एग्ज़ाम से पहले आपने 3 महीने पहले सोचा कि यार ये बुक आ गई है, अरिहंत आ गई है, ये भी आ गई है, आर डी शर्मा तो थी पहले से, तो बुक का टेबल के ऊपर चेक हो गया है, और आपको लग रहा है कि अगले 4 महीने सब एकदम खत्म हो जाएगा, सब कुछ डन होगा। एग्ज़ाम आ गया, 3 ओपन ही नहीं हुई है, राइट। ये होता है। तो ये बड़ा नॉर्मल नॉर्मल ये बहुत रूटीन है, बहुत सारे बच्चों का है रूटीन, मेरा भी रहा है कभी ना ऐसे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रैटेजी काम करती है अभिषेक मेरे हिसाब से। मैं जैसे मैं मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी कैन हेल्प यू, ऑलवेज मेक स्ट्रैटेजी। आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका, बैठ के प्लान बनाओ अपना अगले 3 महीने का। प्लान ये नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ोगे, ना ना, ये प्लान नहीं है। प्लान ये है कि आप पहला राउंड करोगे रिवीजन का, एंड पहले राउंड में आप ये लिखते जाओगे हर चैप्टर में कि यार अगले रिवीजन में मुझे ये 3 टॉपिक नहीं करने हैं, आई एम वेल वर्स विथ दीज 3 टॉपिक्स। ये दो मेरा अभी भी लग रहा है कि पकड़ नहीं आई है, 15 क्वेश्चन कर लिए लेकिन पकड़ नहीं आ रही, उनको नोट डाउन करो। हर चैप्टर से आपने 2 टॉपिक निकाले, पहले राउंड के बाद आपके पास 15 टॉपिक आ गए, 20 टॉपिक आ गए पूरी बुक से ना। सेकेंड राउंड 20 टॉपिक का है, पूरी बुक का नहीं है, क्योंकि पूरी बुक का टाइम भी नहीं है आपके पास, 2 राउंड में तो एग्जाम आ जाएगा, है ना, ये होता है। तो वैसा स्ट्रैटेजी लगाने का हमेशा, बल्कि मैं इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैंने अभी पिछले साल ही मैंने एलएलबी कंप्लीट किया है, पिछले साल ही एलएलबी किया, एंड जस्ट बिकॉज आई वाज कीन टू नो लॉ, तो आई डिड एलएलबी अलोंग साइड में जॉब। और एलएलबी 2 तरीके थे एलएलबी करते वक्त ना, कि एक तो होता है नॉलेज, तो मैं नॉलेज के लिए तो मेरे पास साल भर था, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम की बात होती थी, अभिषेक जी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो एग्ज़ाम का क्या हुआ कि पहली बार मैं जब गया तो मुझे उसमें 1 महीना पढ़ना पड़ा, 1 मंथ, पहले सेमेस्टर के लिए पढ़ा। तो ठीक है, वो हो गया, सेमेस्टर भी हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने बोला भाई अगर मैं 1 महीने पढ़ने लगा तो मेरी तो बाकी कुछ तो कर ही नहीं पाऊंगा मैं, मेरे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए, तो 1 महीने मेरे पास है ही नहीं करने के लिए। तो मैंने फिर वहाँ से ट्रिक स्टार्ट किया, टेक स्ट्रैटेजी स्टार्ट की कि कैसे करना है इसको ताकि कम से कम टाइम जाए। एंड लास्ट में आके जो मेरा 4th 5th 6th सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर होते हैं एलएलबी के अंदर, तो 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड मैंने जो है वो जो आपका मेन सिलेबस की बुक होती थी वो साइड कर दी, उसको मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना एक अलग चीज़ है और नॉलेज एक अलग चीज़ है। नॉलेज के लिए मेरे को पूरा साल है, मैं पढ़ सकता हूँ, जब भी मूड आया उठाया बुक उठाया पढ़ लिया। एग्ज़ाम आपका टाइम फिक्स है, आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपका कोई वेट नहीं करेगा, आप नॉलेज लेके आओगे तो एग्ज़ाम दोगे। देन आई एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, आई सेड कि भाई मेरा ये बुक है, इस बुक में से मुझे कितना मार्क्स चाहिए, मुझे इस पेपर में 70% स्कोर करना है, 90 आई कैन नॉट एस्पायर, उसके लिए मुझे साल भर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक्सप्रेशन ये है कि जितना टाइम है मेरे पास उतने में बेस्ट कैसे यूटिलाइज करूँ उसको और अच्छा स्कोरिंग कैसे करूँ। तो मैंने उसको पेपर को एनालाइज करना शुरू किया कि कौन से वो 4 चैप्टर हैं जहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे चैप्टर हैं उसके अंदर, ये तय है यहाँ से इन 3 से एक आता है, इन 3 से एक आता है, इन 3 से एक आता है। तो ऐसे करके स्ट्रैटेजी बनाया है, तो उसमें मैंने देखा कि करीब 70-75 तो कवर हो गया है। उसके लिए मुझे सिर्फ 3 दिन पढ़ना है, मात्र 3 डेज, 3 डेज पढ़े और उतना स्कोरिंग किए। पहले से मालूम मालूम है कि इतना ही स्कोर आएगा, बिकॉज आई न्यू दैट, मैंने उतना ही तो तैयार किया है।
लेकिन बात ये है कि 3 दिन में किया है, 3 महीने में नहीं किया है। 3 दिन में अगर मैं स्ट्रैटेजी से 70% पहुंच जाता हूँ, और कोई अगर ऐसा है जो पूरे साल वो भी पढ़ रहा है, तो कांट ही स्कोर 90% प्लस? ही कैन. So why all this is possible? Because I am applying my brain to the strategy. पेपर का स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, बल्कि जब आप पेपर में जाते हो तो वहाँ भी आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, इस पे बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अपने बच्चों से भी डिस्कस करते रहता हूँ कि जब आप पेपर में बैठते हो तो हर किसी का अलग अलग तरीका है पेपर को जब आप हाथ में लेते हो ना, वहाँ से लेके आगे स्टार्ट करने का। कोई क्या करता है कि पूरा पेपर देखेगा लास्ट तक, और जैसे ही क्वेश्चन आया कि कोई ये तो आता ही नहीं, तो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया, यार ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं, ये करना भी पड़ेगा। तो जो आता है वो गलती होना शुरू हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, राइट। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल काम करना है, बहुत इजी काम। जब आप 3 घंटे पेपर में बैठते हो ना, तो 3 घंटे में कैसे आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है ये समझना ज़रूरी है। दिमाग काम करता है कॉन्फिडेंस पे, है ना, कि कॉन्फिडेंस बढ़ा तो जो नहीं आता है वो भी हो जाएगा। पूरा नहीं हो पाया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 का तो हो ही जाएगा, 1 छूटेगा, राइट। आई एम ओके विद दैट। ऑल 3 शुड नॉट गो, 2 आई हैव टू ब्रिंग बैक, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा सिंपल तरीका है कि जो जहाँ से स्कोर ज़्यादा होगा पेपर में, पहले उस एरिया को अटैक करने का। जैसे आपका ये पेपर आता है अभी 11th-12th में आता है, उसका 4 सेगमेंट है उसके अंदर आपके, हाँ, MCQ हैं, फिर वेरी शॉर्ट टाइप का है, शॉर्ट है, ये है ना। आई विल नेवर अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। पहले छोटे क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस गेन करना है। अगर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स निकाल दिया पहले 15-20 मिनट में, तो आई नो ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चन इज गॉन, पेपर इज गॉन, एंड आई डिड वेल इन दैट 30%। फिर क्या होगा कि लॉन्ग का प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, बहुत छोटे बाद में कर लेंगे हम लोग, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं। गड़बड़ क्या है कि लॉन्ग में करना था आपको 10 मिनट के अंदर, आपने अटेम्प्ट किया स्टार्टिंग में 15 मिनट में, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको ड्रैग करते जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, 2 घंटा निकल गया, लॉन्ग से सोटी पे पहुंचे आप, आगे करीब 25-30 मार्क्स की क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाद में क्या हुआ कि आप रश कर रहे हो, आप भागने की कोशिश कर रहे हो कि एंड से पहले हो जाए, लेकिन आप रशिंग में जो इजी क्वेश्चन थे, लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं हम उसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, लो हैंगिंग फ्रूट, जिसको ऐसे हाथ बढ़ाया तोड़ लिया, राइट। तो वो जो इजी पार्ट था वो वहाँ आपने गलती कर दी है, भयंकर गलतियाँ की हैं। 10 वाला ठीक किया होगा, लेकिन 10 वाला किस कोस्ट पे आया है? 10 आपका जो है वो बड़ा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, छोटे छोटे 10 क्वेश्चन की कोस्ट पे आया है, राइट। तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रैटेजी है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज डिप्लॉय देम। एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं कि यही स्ट्रैटेजी सब पे काम आएगी। कोई ऐसा हो सकता है, यार मेरे को शॉर्ट करूंगा ना, पहले बड़े वाले क्वेश्चन पहले करूंगा तो आई फील कंफर्टेबल, और मुझे पता मेरा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का होता है। आप पेपर में पता ही नहीं रहता कि 2 घंटा निकल गया और पेपर तो अभी आधा भी नहीं हुआ है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आप वॉच लेके जाती हो, बच्चे लेके जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, वॉच रखो, नॉर्मल ले जा सकते हो, डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि उसमें हेल्प है आजकल ना, तो वो नहीं ले जा सकते हो, वॉल होती है ना। तो आप तय कर लो कि एक नज़र आपकी वॉल पे रहेगी, क्योंकि आपने पहला सेक्शन स्टार्ट किया है, एंड यू हैव एंड टाइम फॉर दैट, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद अगर आपका क्वेश्चन छूट भी जाए ना, यू शुड बी सो स्ट्रिक्ट विद योर स्ट्रैटेजी। 2 क्वेश्चन छूट गया, लीव इट, टाइम इज अप, लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, इसको मैं बाद में देखूंगा। क्योंकि आप स्लिप करना शुरू करोगे ना, तो रुकेगा नहीं स्लिपेज, फिर वो बढ़ते जाएगा, लास्ट में जाके क्वेश्चन कोस्ट करेगा आपको कम से कम 5-6 नंबर का ना। दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। गुड स्ट्रैटेजी ये है कि आप टाइम अप, यू मूव ऑन, एंड बी वेरी क्लियर कि किसी भी क्वेश्चन, पूरे सेक्शन को उतने टाइम में करने के लिए यू हैव 2 or 3 मिनट्स टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। नहीं आ रहा है ना, उसको पार्क कर दो, जितना उसमें उलझोगे उतना आपको डिरेल कर देगा वो। डिरेल करना बोलते हैं कि आपको जो ठीक करने वाले थे वो भी डिरेल हो गए हो। डिरेल नहीं होना है पेपर के अंदर।
तो मैं हमेशा यही करते आया हूँ पिछले मतलब जब भी मेरा स्टडी का टाइम था कि आई ऑलवेज न्यू दैट अ बैड क्वेश्चन कैन स्पॉइल माई पेपर। जैसे ही मुझे लगे कि ये पढ़ने में ही लग रहा है कि ये तो नहीं होगा यार, उसको पार्क कर लिया साइड में लास्ट के लिए। क्योंकि जब मैं 80 में से 50 करके बैठा हूँगा ना, सॉरी 70 में कर चुका हूँगा कॉन्फिडेंस के साथ, ये 10 को मैं, मुझे मालूम है 10 में से 5 में ले आऊँगा वापस। लेकिन अगर मैं 50 करके बैठा हूँ और मैं 30 पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसमें सही वाले भी गलत भी हैं, तो मुझे पता है मैं 10-15 और ऐड होगा, उसमें 60-65 हो जाएगा। आई लॉस 15 मार्क्स, बैड स्ट्रैटेजी। और very low level details, but then these are the techniques I've used all my career. Yes. ऐसे ही पढ़ते हैं यार। मैंने बताया ना कि आई वॉज नॉट अमंग द बेस्ट इन द क्लास, आई वॉज नॉट क्लास टॉपर, टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी मीडियोकर। तो आप जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही IIT भी पढ़ते हैं यार, कोई अलग तरीका नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि द ओनली डिफरेंस इज कि वो शायद पहले अटेम्प्ट में समझ में, कोई अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ता है उसको समझ में आ गया, आपको 2 घंटा लगेगा, बट ये दिक्कत की बात नहीं है, नेचुरल है वो। हम सबको एक जैसा नहीं बनाया ऊपर वाले ना, सबका थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन वो हमारा लिमिटेशन नहीं है, जो है सो है, राइट। इसके साथ जो व्हाट वी आर, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद दैट, एंड देयर इज इनफ इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू अचीव सेम थिंग बाय एवरीवन। ऐसा नहीं कि यार आप कर लोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे भाई आप कम में करोगे मैं ज़्यादा में करूंगा, तो कम ज़्यादा का फर्क है, बट कम ज़्यादा टाइम इज नॉट अ कंस्टेंट, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। इस बात से नहीं घबराना है कि यार उसको समझ में आ गया मुझे नहीं आया, भाई उसको आगे मुझे भी आ जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है, ओके। नहीं, अच्छा मुझे मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, तो आपने पार्टिसिपेट किया था? कोई बात, अटेम्प्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अटेम्प्ट करते रहना चाहिए। हाँ, देखो कोई भी आपको आपके मन मुताबिक स्कोर नहीं आया, मान लिया किसी भी एग्जाम में, तो स्कोर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये पता हो कि वो कहाँ पे गड़बड़, कहाँ पे हुई है, क्या चीज़ आप ठीक नहीं कर पाए, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। बात ये होती है कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, इवन आफ्टर स्टडी ऑल्सो, आप हमेशा ना बैठ के ये ज़रूर करो कि जब आपका रिजल्ट आ जाए, चाहे आपके पेपर का रिजल्ट है, चाहे आपका आगे फिर आप जॉब में जाओगे तो जॉब में आपने कोई काम किया वो अच्छा नहीं हुआ, आपको उस पर फीडबैक आया कि ये अच्छा नहीं था, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम जो ठीक नहीं हुआ उसको बैठ के एनालाइज करें कि इस पर गड़बड़ कैसे हुई, क्या चीज़ है जो मेरे से गलत हुई। जैसे आप कॉपी मिलती है ना एग्ज़ाम की बात, तो आप उसको खोल के देखते हो, तो बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि यार ये स्टेप गलत हुआ, वो सोचते हैं उसके बारे में ना, वो सब बच्चे अरे ठीक है यार ये हो गया भाई, एग्ज़ाम ख़त्म, अगली बार देखेंगे। तो ये जो अगली बार का जो फंडा है ना, वो कभी एंड नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार नज़र मारो कि गलत क्या हुआ था, और उस टाइम आपको पता रहता है, आप कोरिलेट कर पाते हो कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था तो मैं क्या सोच के लिख रहा था जो गलत हो गया, ये भी याद आ जाता है। ये मैंने देखा है कि ये याद आ जाता है कि अच्छा उस टाइम दिमाग में चल क्या रहा था, है ना। तो ये करना ज़रूरी है, अगर ये करोगे तो अगली बार मिस्टेक्स कम होंगी, होंगी लेकिन कम होंगी, तो वो इम्प्रूव होते जाएगा, ठीक, बस। मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई हेट इट। हाँ, मुझे जो कॉन्सेप्ट मतलब पकड़ में नहीं आते थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाज फैंटास्टिक, आई मीन आई वाज सो गुड एट ऑर्गेनिक, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल थी वो, लॉजिक लगता था उसमें ना, भाई कार्बन के कितनी वैलेंसी है तो आपको पता रहता था, आप उससे बहुत सारे फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूले बना लेते जो आपने कभी देखे भी नहीं है,
यू नीव इट कि कैसे जाएगा, क्या बन के आएगा, है ना, फॉर्मिक एसिड होगा, जो भी वट एवर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज ऑलवेज ईजी टू डील विद। इनऑर्गेनिक वॉज शायद उस लेवल के हिसाब से समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लगती थी। फिजिक्स मेरा अच्छा था, फिजिक्स में आई वॉज वेरी गुड। मुझे बहुत फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है। मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स में लॉजिक है, कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ग्रेविटी है या फिर आपका कोई और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा और टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है, कोरिलेट करना पड़ता है ना। जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो जब क्वेश्चन आता है तो आपको एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। ये भी अप्लाई होता है उस चैप्टर का, ये वाला टॉपिक भी है, ये वाला टॉपिक भी है, दो दो टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक से पता है, आप उनको समझ सकते हो कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसलिए लगा है, तो आपको फिजिक्स बहुत ईजी लगेगी। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, मतलब इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन कि मुझे कॉन्सेप्ट को पकड़ने की ज़रूरत है। जब तक कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आएगा तो तब तक मुझे छोड़ याद करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि याद तो याद नहीं रहने वाला है, ये तय है। जितना सिलेबस है 12th का, उसको कोई याद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ भाई। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ही है जो याद रहता है। एक बार आपको याद हो गया, कॉन्सेप्ट याद करने मतलब समझना है, याद नहीं, है ना। टॉपिक को बार बार पढ़ते रहते हैं, मैम भी समझा देती हैं और ट्यूशन में भी समझा देती हैं, फिर भी समझ में नहीं। जैसे मान लो लास्ट दिन अगले दिन पेपर है, रात को हमारा सारा सिलेबस होगा और वो कंसेप्ट अभी अटका हुआ है और हमें पता है मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अब कभी हमें पता है रात को हमारा फ्रेंड पढ़ रहा होगा, तो फोन करते हैं कि वो समझा दे। रात को तो समझाया नहीं जाता। तो अब एक दो दिन पहले अगर छुट्टी भी है तो घर जाके समझे, तो सर तब भी समझ में नहीं आता। तो इंस्टेंट कैसे समझे, ये समझ में नहीं आ पाता। मैं यूट्यूब से अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंस्टेंट तो मुश्किल है, देखो क्योंकि इंस्टेंट, दोस्त वगैरह हाँ इंस्टेंट तो अगर आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ रहे हो तो मुश्किल है, कोई अपना टाइम नहीं देगा। पर यह है कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और आपके पास टाइम रहा, जब टाइम रहते अगर आपने किया होगा, तो तब आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, मतलब टीचर भी है, यूट्यूब भी है, कोई ना कोई सिंपल लैंग्वेज में आपको बता ही देगा। और अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा ग्रिप नहीं आ रहा है, नेचुरली होता है, कई बार कुछ सब्जेक्ट पे नहीं आता है, नहीं है, ये इसका वो क्वेश्चन भी मतलब बिल्कुल समझ में वो अलग, पता है वो अलग आपको तभी लगेगा जब आपने कॉन्सेप्ट को याद किया होगा, क्लियर नहीं किया होगा, समझा नहीं होगा। क्योंकि अगर समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसको पकड़ सकते हो, कि इसको, इसमें आप फंडामेंटल पकड़ते हो उसमें ना, कि फंडामेंटल मुझे ये वैल्यू चाहिए टू कैलकुलेट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, है ना। तो अगर आपने वो फंडामेंटल आपने ठीक से पकड़े हैं, तो फिर वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पकड़ लोगे कि इस वैल्यू से ये निकाल सकता हूँ। प्रैक्टिस का थोड़ा, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस चाहिए होती है, बिना प्रैक्टिस के थोड़ा मुश्किल होता है। कॉन्सेप्ट को भी अपने रिदम में लाने में आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट, लर्निंग द कॉन्सेप्ट। ओवरनाइट नहीं होगा, इट्स अ जर्नी, कुछ एक दो महीना 4 महीना लगाना पड़ता है, लेकिन हो जाएगा, मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा लगना पड़ेगा मिशन पे, राइट। स्ट्रैटेजी मैंने स्ट्रैटेजी बताया, अभिषेक जी आपकी हेल्प करेंगे, राइट। और स्ट्रैटेजी वही है कि पहले आप वो कवर करो जो आपकी ग्रिप में है, उसके बाद फिर उसके ऊपर टॉप, ऑन टॉप ऑफ, जिसको बोलते हैं टॉप अप करना, कि इतना स्कोर 85 तो मैंने पकड़ लिया है, 85 तो मेरा कहीं नहीं गया, 85 को 95 कैसे लेके जाना है, वो मेरे ख्याल से नाउ अभिषेक जी अब मिलके आपके साथ में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कैसे, कौन कौन टॉपिक है, कैसे हम लोग उसको क्लास में कवर करेंगे। आर प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो हेल्पिंग इन दैट डायरेक्शन कि आप एक टॉपिक को पकड़ो जो आपको नहीं आता है, प्रैक्टिस मोर ऑन दैट टॉपिक।
मैं अब टीचर नहीं रह गया हूँ तो मुझे उतना तो आइडिया नहीं है। वो अभी जो देखो मैंने किया है ऑलमोस्ट कितना 30 years 30 years अगो आई वॉज डूइंग 12th। 30 साल में तो दुनिया बदल गई है। तो अभी मुझे आइडिया नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दैट। अभिषेक जी बता सकते हैं इस बात को ना। तो अभी कहीं ना कहीं हाँ फिजिक्स को पढ़ने का नजरिया वही मैं इनसे बता रहा था अभी कि मैंने कहा अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ते हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ने का मतलब पता है ये है कि आपको आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर अगर हम ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, है ना, पेंडुलम में आपका ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। हाँ, तो अगर आप ऑसिलेशन की बात कर रहे हो तो ऑसिलेशन में आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या निकलता है। आपको फॉर्मूले में जो जो भी आपके वेरिएबल यूज होते हैं वो वेरिएबल आपके ऑसिलेशन में किस तरीके से फिट हो रहे हैं ना, कहाँ से कौन सा वेरिएबल निकल के आता है, कौन से वाली लेंथ को या किसको आप किससे फॉर्मूले में कहाँ पे आई है वो, अगर आप इसको दिमाग में बैठाते हो ना तो फिर आपको क्लियर होता है। क्योंकि अगर आप अगली बार ऑसिलेशन ना देके उसने किसी और तरीके से दे दिया वैल्यूज को तो आपको पकड़ में रहेगा कि अच्छा ये मोमेंट ऐसे होता है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू वो क्या है, आपका जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसका वैल्यू क्या है फॉर्मूले में, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूला याद करना तो आसान है। मतलब आप चैप्टर में गए, आपने फॉर्मूला देखा, आपने फिगर देखी, फिगर में ये एल हो गया आपका, ये आर हो गया या आर्क हो गया, वट आपने उसको फॉर्मूले में लगाया, आपने याद कर लिया। बट बात ये है कि वो जब थोड़ा सा भी ट्वीक करके आएगा तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि यहाँ से वैल्यू कैसे निकालनी है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमने कॉन्सेप्ट को इसलिए फोकस करना है कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, उसके बेसिक्स क्या है, वो जो वेरिएबल हैं वो कहाँ से मैप हो रहे हैं, है ना, उस पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि फिजिक्स इज वन सब्जेक्ट जो कि इट्स अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आ गया तो देन यू आर अहेड इन द गेम। सिंपल, प्रैक्टिस, कोई तरीका नहीं। अभिषेक जी बता देंगे उसके बाद भी नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैरायटी पे प्रैक्टिस नहीं करोगे। अच्छा ऐसा क्वेश्चन बोला गया था, इसको को इसने कैसे पकड़ा है क्वेश्चन के अंदर ना, कि किस तरीके से उसने वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं है। और प्रैक्टिस में आप फोकस करो कि यार मैं मतलब मुझे एक चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन वैरायटी के उठाने हैं, ये वैरायटी उठानी है, ये इससे मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा, तो उतना ही करो। ऐसा नहीं कि क्योंकि बुक्स में आजकल 100-200 क्वेश्चन होते हैं एक ही चैप्टर के ना, 200 क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो फिर आपका तो टाइम निकल जाएगा। तो अभिषेक जी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं कि मिनिमम कितना किया जाए जिससे आपका सारा कुछ कवर हो जाए, या फिर आपके अपने वीक एरिया के हिसाब से वो वाला टॉपिक पकड़ते हैं जहाँ पे आपका वीक एरिया आपका अपना, नॉट ऑफ हिम नॉट ऑफ हर, आपका अपना वीक है, वो आपका अलग है, इनका अलग है, सबका अपना अलग होता है। तो दैट इज एग्जैक्टली अ फीचर इन आवर ऐप विच टेल्स एवरी इंडिविजुअल कि मेरा वीक एरिया क्या है। बाकी सबका होगा लेकिन मेरा कौन सा वीक एरिया, चैप्टर वाइज। सो एनीथिंग एल्स, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द सेशन। वाइंड अप। Thank you very much for your time, right? It was nice interaction with all of you, and I wish you all the best for your exam and for your future. Okay, okay. Thank you.